Assalamu alaikum everyone, welcome to the last episode of this season of podcast with Girls in Twin Cities. At least this is the last one we're filming, पता नहीं release किस order में होंगी. But for today's topic, it was a topic that was incredibly relevant to me. तो मैंने सोचा मैं moderate करती हूँ marriage, जो कि मेरी हुई भी नहीं है. Easier for you. No, I figured कि most जवाब ये तीन लड़कियाँ देंगी जो मेरे साथ हैं, मारियाना, लैला and दुरे. So let's start out by asking some basic questions. तो बचपन से ना हम लोग ये देखते हैं कि लड़का हो या लड़की, मैरिज और करियर, जो कि लड़के के केस में ज़्यादा होता है, लड़की के केस में थोड़ा कम होता है, वो दो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट मरहले हैं. बट उसमें भी मैरिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब द सेकेंड यू ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, दुनिया आपको शादी का कहना शुरू कर देती है. And it can take a toll on the whole marriage system, especially हमारा जो arranged marriage system है कि घर पे भाई लड़के वाले देखने आएंगे, ट्रॉलियाँ लगेंगी, सामने आएंगी. It can take a toll on both the guy and the girl. So what I want to ask you guys is, what is your thought about this trolley culture of our country? We never did it in our family. I mean, नहीं, ट्रॉलियाँ तो लोग नहीं लाते थे, रिश्ते तो आते थे. No, but रिश्ता आना versus एक ट्रॉली लाना और आपका किसी से मिलना, I don't think हमारी फैमिली में ऐसा होता है. Although मुझे विवाह is my favorite movie, so I did think it was very sweet. But yeah, as I got older, I realized it's not for me. But I think that's, I'm sure कुछ घरों में अभी भी होता है, but हमारी फैमिली में, I don't know. Did you ever have a trolley रिश्ता? No. Yeah. Mine was not an arranged marriage. No, but it was that. before the rishta started coming. I was Achha. booked, so I was booked. With me, it was like जब भी कोई जिस तरह अम्मी ने मुझसे बात की कि someone's interested or anything, वो आपस में मिल गए. मैंने कहा कि मैंने नहीं मिलना. तो मैं तो वैसे मेरा शौक बहुत था मैं लड़का देखने जाऊँ. I just wanted to be, you know, like मुझे मजा आएगा विवाह टाइप के. मैं ऐसा ना दिल लगी थी, मुझे था मैं बदतमीजियाँ करूँगी. I really wanted to do that. वो मुझसे इस तरह आएंगे और मुझे बहुत बदतमीजी से जवाब दूँगी. So I really wanted to do that, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला. So yeah, but my question to you, Dure, is कि अगर वो नहीं ट्रॉलियाँ सेट हो रही, like not that I'm in favor of it, but generally for everyone, तो फिर कैसे, how do families, like it's arranged marriage फिर कैसे होती है? अगर नहीं, हर किसी को मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती मुकम्मल, जहाँ किसी को नहीं मिलता मोस्टली, तो बिकॉज हमारे माशरे में नहीं होता कि यू आर नॉट अलाउड टू डेट. एक मोस्टली गर्ल्स या मोस्टली ऐसे सिचुएशंस ही नहीं आती. इट्स लेस को एजुकेशन ही कम कॉमन है. देन आपकी वो मुलाकात होगी भी कैसे, कजन्स तक आपका एक बहुत महदूद सा, वो भी कुछ चंद फैमिलीज में एक्सपोजर होता है. सो how do you meet your spouse then? What do you think is the ideal way? basically मशरकी dating कैसे होती है? I don't know. So I will say this. I have met Rishta boys. I've never done the trolley situation, but there have been situations where I suppose मेरी अम्मी या किसी ने नंबर दिया किसी को कि आप लोग मिल लो, and I think it was easier for me because मैं पाकिस्तान में थी नहीं. So this happened a couple of times while I was in London, that I met someone casually. We met for coffee, बात की, realize क्या, you know, this is not my vibe या जो भी. And I think that also for a lot of families is uncomfortable. I know a lot of parents don't want that. The reason why I am against the trolley culture is because I believe कि उसमें हर कोई अपने best behavior पे होता है, and you don't really get to know the other person. What you get to know is कि उनका घर कैसा है, उनकी family कैसी है, उनके you know गाड़ियाँ क्या हैं उनके पास, लड़के की डिग्री क्या है, लड़की कितने साल की है, ये इन सब चीज़ों पे फोकस होता है. But the things that actually make a marriage work, and this is a very unfortunate reality, जो लोग कहते हैं कि जी आजकल तो शादियाँ चल नहीं रही क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या ये वो. I think शादियाँ इसलिए नहीं चल रही क्योंकि it is true आज के ज़माने में women are not ready to, you know, present themselves on a platter for sacrifice, but it's also true कि ये जो सिस्टम है, it's meant to prop up marriages between families that are very similar, चाहे उन लोगों की आपस में compatibility हो या नहीं. और हमसे पिछली जनरेशन तक ये था कि आपको चाहे एक दूसरा जहर भी लगता है, आपने एक साथ रहना है, एंड यू हैव टू, यू नो, कॉम्प्रोमाइज करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, और चाहे इसमें आप भी मर जाए और अगला भी मर जाए, और मिल के अपने बच्चों को भी बर्बाद. हाँ, और सब टॉक्सिक हो जाएं, सब पागल हो जाएं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते. सो ऐसा नहीं है कि तब कोई शादियाँ बहुत ज़बरदस्त चल रही थी. अब बस ये है कि पीपल आर रियलाइज दैट इट्स ओके टू लीव एंड मूव ऑन. दैट बीइंग सेड, आई डू थिंक, रिसेंटली हमारी फैमिली में किसी के रिश्ते की बात हो रही थी और उसको उन्होंने कन्विंस इस तरह किया जा रहा था कि उनका तो फलानी जगह पे इतना बड़ा घर है,
And the girl who they were talking to, she's 25, 26, educated and has a good job. She's like, I don't care about these things. If this is what you're going to tell me about a guy, तो मैं क्यों उससे शादी करने में interested होंगी? But I think ये जो disconnect है parents की generation और हमारी generation में, where they still value these things कि ख़ानदान कैसा है, कहाँ का है, ख़ानदानी लोग हैं, versus our generation जहाँ हम personal compatibility देख रहे हैं. So I think that ट्रॉली कल्चर, उसमें आप कैसे असेस करोगे कंपैटिबिलिटी? यू हैव टू टॉक, यू हैव टू गेट टू नो दिस अदर पर्सन एक्चुअली. और मुझे लगता है कि जो रिश्ता सीन है, जैसे दुर्सिमी की जो अरेंज मैरिज थी, शी वाज वेरी लकी इन अ वे दैट हर पेरेंट्स हैड अ सोशल सर्कल जहां पे ऐसे उसको बंदों की ऑप्शन मिल गई जिससे शायद वो उसकी वाइब मैच हो गई या वो कनेक्ट कर सकी. बट मुझे पिछले 2-3 साल में मुझे एक्चुअली चीज बड़ी अम्यूज की कि मुझे 2-3 अपनी किसी फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हैं. वन वाज अ जूनियर, वन वाज एन एक्स कॉलीग, एंड दे वर लाइक वी रियली वांट टू गेट मैरिड. हम रिश्ते देखने को भी तैयार हैं, हम अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, पर हमारे माँ बाप के जो सोशल सर्कल में जितने मैं लड़कों से मिलनी हूँ उनके साथ नहीं मतलब में हो सकी. एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, व्हिच इज वेरी राइट थिंग. मतलब वो सही बात कर रही है, लेकिन हम शादी भी करना चाहते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा हम लड़के कहाँ पे ढूंढो. सो आई ट्रस्ट यू, यू नो मी. इफ यू हैव अ गाय अराउंड यू, प्लीज यू नो सेट मी अप विद समवन. या मुझे मैं ओपन हूँ, लेकिन मैं सीरियस देखना चाहती हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू कैजुअली डेट. एंड एक तो पहले मैंने ये चीज बहुत एडमायर की दैट समवन रियलाइजेस दिस कि यार वो शादी करना चाहता है एंड उसको शर्मा शर्मी में वो बैठा नहीं है. शी इज गोइंग आउट एंड सीकिंग दिस थिंग. सो एक तो मैंने बहुत एडमायर की. खैर मेरे एरिया में बंदा था नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रॉन्ग पर्सन टू मैसेज. बट आई फील लाइक हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता कि उसके सोशल सर्कल में थ्रू रिश्ता थिंग उसको एक ऐसा पर्सन मिल जाए थ्रू अरेंज मैरिज ट्रॉली सिस्टम से जहाँ पे वो कर सके. हमारे ना नॉट जस्ट प्रिविलेज्ड, हमारे सोशल सर्कल में आई एम टॉकिंग अबाउट आवर क्लोज फैमिली और क्लोज सोशल सर्कल. आई एम द ओनली पर्सन हु हैड एन अरेंज मैरिज दैट यू कैन से हैजंट एंडेड इन डिवोर्स. And so it's not even about getting, I think हमारा इतना फोकस होता है कि बस लड़की की शादी हो जाए. No, and parents, for all the wrong reasons. Yeah, so parents will look at things like degrees and cars and you know family and all of those things, but they will not look at diamond rings कितनी महंगी हुई है. But they will not look at कि इन दोनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है. Unfortunately उस वक्त लड़कियों पे भी शायद इतना प्रेशर होता है. When everyone around you is getting married and moving on in their life, you also feel like, oh, maybe I should also get married. So you also end up making a decision that's maybe not the best for you. अच्छा, एक बात जो मुझे बहुत इस कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत फैसिनेट भी करती है, बट जिस मेजॉरिटी जैसे मुझे ट्रेड चढ़ती है ना, कि यू सेड कि ट्रॉली कल्चर में एवरीवन पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. बट इवन आउटसाइड ऑफ ट्रॉली कल्चर, द वे यू फाउंड योर हस्बैंड, you guys talked, you met, you had a time to understand each other, and वो understanding हो गई. Anyways, you had time to like get to know each other and see कि क्या चीज़ें हैं that would make that relationship work. उस scenario में I think a lot of it was also luck, because people can be very good at hiding these things. हो सकता था कि तुम पागल निकलती और उसके सर पे चपेड़े मारती, या वो पागल निकलता तुम्हारे चपेड़े मारती. और ये भी है कि आई डू थिंक जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं हैं, आप अपना काफ़ी हद तक बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं. मतलब ये मुझे अपने बारे में पता है कि मैं एक कंट्रोल सेटिंग में बहुत तमीज़ से रह सकती हूँ, लेकिन जब आप 24 घंटे मुझे देख रहे हैं तो किसी 1 घंटे में मैं पागल हो सकती हूँ. एंड आई नो दैट दिस इज ट्रू, एंड दिस इज व्हाई पीपल ऑल, ये लोगों की एग्जांपल होती है ये कहने के लिए कि ओ लेकिन देखो लव मैरिज हुई उनकी और उनकी भी तलाक हो गई, इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है. आई फील स्टिल you do get to know someone the more time you spend with them, but ultimately how you get to know someone is when you live with them and you have entirely 24/7 access to each other. It's entirely different of you knowing the person before you get married and you know on phone calls or randomly meeting people. पाकिस्तान में वो लिव इन वाला सीन तो होता नहीं है, बट जब आप साथ रहना शुरू करते हो और डे टू डे आपके छोटे छोटे मसले होते हैं कि बेड की साइड पे सोना है, चाय का टेम्परेचर क्या होगा, पंखे का कमरे का क्या टेम्परेचर होगा. सो वो छोटी छोटी चिक चिक चुक चुक इज़ वेरी डिफरेंट. बट आई ऑल्सो फील कि जो है जो बहुत ज़्यादा जो नहीं हमारे यहाँ मतलब समझा जाता, कि मुझे लगता है कि जो मंगनी से शादी तक का पीरियड है ना, इज़ द पीरियड वेयर वो मंगनी की ही इसलिए जाती है वेयर यू गेट टू नो द अदर पर्सन. क्योंकि अगर आपके यहाँ डेटिंग अलाउड नहीं है, एंड यू नो इट्स फाइन इफ़ यू डोंट क्लिक इन दैट पीरियड, यू कैन जस्ट ब्रेक ऑफ द. बट वो इंगेजमेंट टूटा जब हम छोटे थे, और इंगेजमेंट टूटना वाज कंसिडर्ड कि ओ माय गॉड इसकी तो मतलब खुदा ना खास्ता इसने इस लड़की ने इस लड़के ने किसी का कत्ल कर दिया है, कि इसकी तो मंगनी टूट गई. हालांकि दैट इज द पीरियड वेयर यू जस्ट गेटिंग टू नो द अदर पर्सन. क्लिक हो गया नहीं हुआ, यू नो. मेरे साथ एक तो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, एंड टेल मी इफ आई एम राइट. मैंने ये किया है कि
हमारी जनरेशन में लड़कियां जो है ना, दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट कि उन्हें कैसे लड़के से शादी करनी है एज कम्पेयर टू गाइज. दे आर लाइक ओके हम बट ढूंढते हैं, वो इतने पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन लड़कियां बहुत पर्टिकुलर है. एंड आई फील बिकॉज उन्होंने पिछली जनरेशन में हमारी माओ ने जो कॉन्सिक्वेंसेज अपनी पूरी जिंदगी गुजारी हैं उनसे शायद वो सीखी हुई है. बट उसकी वजह एक ये है कि रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी जो ये अरेंज मैरिज में घुस रही एंड शी एक ट्रॉली वाला सीन हुआ, फिर उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया कि आप बात करें. सो शी कॉल द गाय एंड जब उनकी बात हो रही है उसने लाइक मुझे लगता है हमें 2-3 बार बात करनी चाहिए एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोज. The girl and the guy आगे से बोलता है I think this is too progressive for me, मैं नहीं कर सकता. Yeah, and it's like let's like हम कहीं और देखते हैं. और she was like वो इस तरह हो गई ना कि I can't believe this कि आजकल के जनरेशन में भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है. बट ये मुझे चीज बहुत ज्यादा लगती है कि लड़कियां they're more particular about कि वो बहुत ज्यादा चीज को लेके केयरफुल है कि हम कैसे बंदे से शादी कर रहे हैं. I know a lot of guys are like हाँ हम अब ढूंढते हैं हमारे लिए. They're like, okay with it. I think there's also an element of कि in the end हमारी सोसाइटी ऐसे सेटअप है कि लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे लड़का जितना अच्छा भी हो. बिकॉज घर तो छोड़ के लड़की जा रही है ना, चाहे वो मियाँ के घर जा रही, चाहे वो ससुराल में जा रही है या मियाँ के साथ एक अलग घर में रह रही है. इट्स द लड़की दैट इज लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड इज एक्सपेक्टेड कि वो रॉकी वाली बात हो गई ना, कि सॉरी रानी वाली बात हो गई कि कहाँ लिखा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये होना है. बट खैर we've so far talked about arranged marriages और उसमें क्या क्या मसले निकल सकते हैं. So क्या is dating the solution? No, haram. No, I will say this. It depends on what you're looking for and depends on what you're talking about. I feel like with dating, the problem in Pakistan is a lot of guys are looking just to date. और उनको पता है कि शादी उन्होंने उस सेटअप में नहीं करनी, उनकी फुप्पो की बेटी से शादी करनी है. Exactly. And whereas like you said there is a gap between what women want and what men want, because लड़कियाँ ये एक्सपेक्ट शायद कर रही होती हैं कि हमें इस डेटिंग सेटअप के थ्रू अपना लाइफ लॉन्ग पार्टनर मिलेगा, जबकि आदमियों को तो लग रहा होता है कि यार हमें तो कहीं से भी कोई भी मिल जाएगा. So I think that disconnect, like we get these questions a lot that I'm 21 and I'm dating a guy, will he marry me? And I think when you're doubting whether or not he will marry you, it just shows कि आप दोनों के बीच में एक disconnect है और उसने आपको किसी हद तक ये फील कराया है कि maybe I will not marry. मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ women are judged way more for dating as compared to men. वहाँ पे अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में लड़का रहा है तो भाई ये तो बॉयज विल बी बॉयज, बट अगर लड़की के 2 या 3 रिलेशनशिप हो गए हैं तो वो तो मतलब सिलेक्शन की वजह से हो जाती है. सो women they can't really date, वो बहुत शर्मी में रहती है. And that is why I feel is a big problem. The consequences are really high. हमें कोई आंटी या कोई रिश्तेदार अगर एक लड़के के साथ देख लें कहीं बैठे हुए भी, तो आपके सीधा घर फोन चला जाता है, आपके पेरेंट्स को वो जज करना शुरू हो जाएंगे, उनकी अपब्रिंगिंग को जज करना शुरू हो जाएंगे. Whereas a guy can be seen with a girl and he's not judged in the same way. Not just one, he can be seen with multiple girls without being judged. People, I mean, in our family also, we joke about like cousins having girlfriends, but we don't joke about girl cousins having boyfriends. Yeah. Because it's seen as like ये कितनी बड़ी बात है कि लड़की का boyfriend है. So I do think within this setup, I think लड़के का boyfriend हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है. Yeah, I think women have a lot to lose. I'm not saying you shouldn't date. I'm just saying be realistic about what you're gonna get. And generally women are जज्बाती too, और पाकिस्तानी औरतों का और हम लोग का ये भी होता है कि even at a younger age our expectation is if you start dating a class fellow at 18, our expectation is this 18-year-old will actually get married to me. But girls even at that stage are thinking right straight शादी का लहंगा जोड़ा घोड़ी. But boys के पहले बैठे हुए हैं, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, तो बंदियां वो कर लेती हैं 18 साल. But boys at that age are just thinking oh अच्छा ये वाली है, अगले महीने कौन सी वाली होगी, उससे अगले महीने. Not all but most of them are generally thinking about एक बात जो मुझे लगता है ना, सोसाइटी नीड्स टू नॉर्मलाइज, जिस पे मुझे वो चपेड़े पड़ेंगी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ख़ानदान में ये बात की थी और इन लड़कियों से मतलब मेरे यंग कज़न से लेके मेरी सबसे बड़ी पप्पो तक सब मुझ पे पड़ गए थे कि तुमने क्या बात की है कि बहुत हद तक ना इस सर्टन क्लास ऑफ आवर सोसाइटी में डेटिंग इज़ नॉर्मल. वो पेरेंट्स जब आप लव मैरिज करते हो पेरेंट्स कहते हैं हाँ जी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी जी, वो तो बच्चे जानते थे एक दूसरे को पहले से था उनका. बट ब्रेकअप्स आर नॉट कॉमन. एंड आई थिंक
अगर आप dating को normalize करें, you need to normalize breakups, because what I see happening is so many of my friends end up marrying the, गाली नहीं देनी है मैं चाहती, but एक जो चवल तरीन इंसान होता है, that they started dating in O levels, they end up marrying him because हाँ है breakup हो गया तो अगला वाला कहेगा कि तुम्हारा तो इससे पहले बॉयफ्रेंड था. जैसे तलाक is a stigma, वैसे breakup is also a stigma. Also a stigma ना, तो मतलब तो उससे बेहतर है कि यार आप 3-4 साल और सब्र कर लो, कोई ऐसा ढूंढ लो जो नहीं ये कहेगा. बिकॉज आई ऑल्सो नो पीपल जो कि नहीं ये कहते, जो नहीं माइंड करते. बिकॉज इन माई ओपिनियन, विच आई नो लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री विद, is every relationship you have in your life is exposure, right? I'm not saying कि उस relationship को तमीज़ की और respect की हदों से गुजरना चाहिए, या उसको कोई समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रिलेशनशिप होना चाहिए. आप लोग समझे समैया के दिमाग में क्या है. तो मतलब I'm not saying कि वैसा relationship होना चाहिए, but spending time in a safe environment with someone who is your boyfriend or your girlfriend, and then realizing you don't want the same things in your life, even if it's like 10 days after you start dating or 10 years after you start dating, should be okay. Also मैंने देखा कि जिन families में parents are okay with their children, daughters dating or children dating, और उनके शायद बॉयफ्रेंड्स घर में कभी आ जाते हैं, एक बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हो, दे डेट द सेफेस्ट गाइज. मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि मैं अपने बच्चों के दोस्तों से हमेशा दोस्तियां करती हूँ, क्योंकि देन पेरेंट्स आर एबल टू चेक कि वो कैसे क्राउड में फिर रहे हैं. एंड क्योंकि टीनेज एक ऐसी टाइम होता है जिसमें आपको पता नहीं होता, आप किसी के टाइम साथ भी करने लग जाते हो. बट इवन टीनेज के बाद भी जितनी भी मैंने दोस्तें देखी हैं जिनके पेरेंट्स वर प्रोग्रेसिव इनफ कि दे न्यू दैट इनकी बेटियां किनको डेट कर रही हैं, दे ऑलवेज डेटेड द सेनेस्ट गाइज एंड दे इवेंचुअली आल्सो एंडेड अप मैरिंग दोस गाइज. सो ये मैं कह रही हूँ कि फॉर द सेफ्टी ऑफ योर किड्स आल्सो, बिकॉज दे आर गोइंग टू डेट, जस्ट लेट देम डेट. नहीं, वो फिर वही होता है ना, जिस चीज़ पे पाबंदी होती है वो आप इतना ज़्यादा करते हो कि वो फिर इवेंचुअली वो करेंगे और वो नहीं पता होगा. इससे बेहतर है यू नो व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, यू हैव अ टैप ऑन देम एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट देम इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड इट्स सो फनी, मेरी कज़न मुझे कहती है कि मेरी हमें बचपन से तो परमिशन नहीं थी डेट करने की. सो जब मेरी शादी की एज आई, मेरी अम्मी ने कहा लाओ कोई लड़का. कहती है आपने तो पूरी जिंदगी इतना हो किया लड़कों के साथ करना नहीं है, मैं एकदम से कहाँ से आसमान से उतारूं लड़के को. लेकिन ये हमारा इसने आसमान के मुझे लगा उस्मान, मैंने कहा है उस्मान का क्वेश्चन उतारना, आसमान से कहाँ से उतारूं. बट ये भी एक चीज है कि हमारे माँ बाप को पता होता है that they're going to meet guys, but they just want to create that पर्दा जो कि उनको लगता है सही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत गलत है, because your children can end up with very wrong partners. ये तो बात हो गई शादी तक पहुंचने का मरहला ना. मतलब हमें ये लगता है कि अच्छा जी शादी के 3 इवेंट्स गुजर गए, शादी खत्म, बट उसके बाद शादी चलानी भी तो है. अच्छा, I am quoting a very good friend of my mother, or when she said this a couple of years ago, I was like, what is she even saying? So she said कि शादी जो है ना, शादी पे मतलब शादी सिर्फ शादी का जोड़ा पहन के स्टेज पे बैठना नहीं है, there's more to it. And at that time I didn't realize कि कितनी वो डार्क बात है, कितने डार्क पिक्चर ऑफ शादी शेयर कर रही हैं या लॉन्ग. मतलब फिर मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड अराउंड मी, माई जूनियर्स, माई एज मेट्स, माई सीनियर्स, everybody, most of them when they were getting married had a focus on what they're going to wear, how they're going to look like, what their room is going to look like, and where's the honeymoon destination. This was it. ना उनका पता था निकाह नामे पे क्या लिखवाया जा रहा है. समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अभी मुझे ख्याल है कि हमने निकाह नामा एक एपिसोड सोची थी करने के लिए, फॉर नेक्स्ट सीजन वी आर डूइंग दैट. सो उनको नहीं पता था उनके निकाह नामे में क्या लिखा जा रहा है, उनके क्या राइट्स हैं, वो अपने मियाँ से क्या मांग सकते हैं, और शादी के बाद उनका क्या, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द कपल इज गोइंग टू एग्री, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट शी वांट्स टू टेक अ स्टैंड एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स शी वांट्स टू लेट गो ऑफ. ऐसी कोई भी सोच किसी भी लड़की ने नहीं रखी. और फिर वो यही हुआ कि शादी हुई बहुत धूमधाम से, बहुत प्यारी इंस्टाग्रामेबल शादियाँ हुई, शादियाँ ख़त्म हुई, हनीमून, इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स, वेरी नाइस हनीमून्स. एंड 3-4 months डाउन द लेन यू हियर देम कि भाई मसले चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि अच्छा फलां जो हमारे ख़ानदान में एक शादी हुई उसका ये मसला चल रहा है. एंड व्हेन यू गेट टू हियर देम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि इस तरह नहीं होता, बट देयर जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जिन पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं. और वो ओपिनियंस ऐसे हैं जो चीज़ें पहले से डिस्कस हो सकती हैं ऑफ व्हेन यू वांट टू हैव अ चाइल्ड. आई थिंक दिस इज अ डिस्कशन दैट यू नीड टू हैव बिफोर गेटिंग मैरिड. और इफ द गर्ल इज गोइंग टू वर्क और नॉट इज अ डिस्कशन दैट यू नीड टू हैव बिफोर गेटिंग मैरिड. और व्हाट इज द हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द बजट ऑफ द हाउस,
who is going to contribute, how pocket money का हिसाब नहीं होगा, कौन कितनी contribution देगा, husband अगर wife working नहीं है तो उसको क्या देगा, उसके क्या account कैसा होगा, joint account होगा, separate account होगा, घर के finances कैसे चलेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि वो इन लॉज के साथ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, तो घर का निज़ाम में कौन अंडर डबल रोटियां लाएगा और कौन बर्तन धोएगा और कौन खाना पकाएगा और कौन यू नो ऑल दीज, ये छोटी छोटी बातें, कहने को छोटी छोटी बातें, बट आई थिंक वो जो कोर्टशिप वाला पीरियड होता है जिसको बहुत ज़्यादा डेटिंग के लोगों में तो लोग कहते हैं कि ये जब मोहब्बत की बातें हुई, आई थिंक और जो मंगनी के दरमियान का पार्ट है, दिस इज द ड्यूरेशन दैट यू नीड टू रियली डिस्कस दीज टॉपिक्स instead of के तब जूता के I want to wear Alize Dishan or I want to wear Sabia Zachi and I want to wear this diamond outfit necklace or whatever and I want this photographer and then eventually ओ जी 3 महीने down the lane last लड़ाई, घर का खर्चा किस तरह चल रहा है, मैंने सास ससुर के साथ नहीं रहना, मैंने बच्चा पैदा नहीं करना, you know they बहुत ही या ओ मेरे राइट तो ये लिख, मेरी तलाक का राइट ही नहीं है जी मेरे निकाह नाम में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स राइट नाउ इफ आई पोस्ट कैसा होता है मोस्ट लड़कियों, हाँ वो उस टाइम जो मौलवी साहब आते कहते हैं लिख के कबूल है वो लिटरली साइन की जगह, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं होता, तो वो कई दफा मैं नोट करी होती है कि वो कहती है, वो लड़की साइड से अपने अब्बा को देखती है कि साइन कहाँ करना है, अब्बा ब्लैंक चेक की तरह, बेटा तू इधर साइन कर, यू डोंट, व्हाई आरंट यू रीडिंग योर निकाहनामा यार, मतलब व्हाई आरंट यू फिलिंग इट योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात ये निकाहनामा एग्जैक्टली नहीं मुझे अभी आई नो समवन जिसका अभी रिसेंटली शादी हुई थी और लड़की ने कहा कि उन्हें निकाहनामा लाना है और मैंने उसको फिल अप करना चाहती हूँ, एंड एवरीवन अराउंड हर फैमिली वाज लाइक शॉक, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज कर रही है और ये ओ शी इज बीइंग सो अनरीजनेबल, और नहीं तो मैं तो तुम्हारा हक मिल जाएगा, एंड ससुराल मायके में सारे वर मेकिंग सच अ ह्यूज डील अबाउट इट कि जैसे पता नहीं इसने क्या मांग लिया है। अल्लाह मियाँ ने आपको सबसे बेसिक राइट दिया है कि निकाह नामे पे आप क्या लिखें, और उसमें एक हिस्सा है कि आप जो शर्त लिखवाना चाहती हैं, आप लड़का लड़की दोनों, लड़का लड़की दोनों, इट्स द सबसे बेसिक राइट है शादी का, आपकी शादी उसकी बेसिस पे देखो, इफ मैरिज इज अ लीगली ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फॉर्म हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका निकाह नामा है। किसी भी आप रिलेशनशिप में जाने से पहले आप कभी बिजनेस करो कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर, आप कभी भी अपनी कोई पर्सनल डीलिंग करो जिसमें आपकी इतनी बड़ी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, विदाउट पुटिंग उस तरह की चीज़ें, और आप उसको देखे बगैर पढ़े बगैर 6 दफ़ा बिजनेस डील्स लॉयर्स वेट करते हैं और आप खुद पढ़ते हो, लेकिन ये निकाहनामा किसी ने नहीं पढ़ना। बट ये खैर इस पे लाइक वी सेड एक पूरी एपिसोड हो सकती है, एंड समवन अ लॉट मोर वेल वर्स्ड इन दिस वर्ल्ड कैन टॉक अबाउट इट अलोंग विद अस। हाँ हम मुझे पता है, बट लाइक लेकिन अब निकाहनामा फॉर्म भी बदल गया है, फॉर्म बदल गया, शुक्र है बदल गया, क्योंकि हमारे जमाने में ब्राइड की जगह बर्डी लिखा होता था, सो आई एम ग्लैड बदल गया। बट एक्चुअली बर्डी लिखा हुआ था, और फिर हमने उर्दू में पढ़ा था, मुझे याद नहीं, वैसे मैंने भी उर्दू में पढ़ा था क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश में हुआ था, मैंने उर्दू में पढ़ के उर्दू में पढ़ा था, फिर अब्बू ने उसको शायद इंग्लिश वाले में पढ़ा था। बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा जो था ना, अब्बू ने मुझे बता दिया था उर्दू में किसी और ने लिखा था, तो अब्बू ने कहा था तुम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करो, तो हम साथ साथ करते। आई वाज फिलिंग द इंग्लिश फॉर्म, और उसमें ब्राइड की जगह बर्डी लिखा हुआ था, एंड I am so glad जब किसी ने कहा ना चेंज हो गया, मैंने कहा it's high time change हो जाना चाहिए। No, I don't think it got better, guys. I don't think it got better. No, we need to get a निकाहनामा and but my point is कि चलो ये लैला ने एक बहुत वैलिड बात की कि मतलब घर कैसे चलेगा टाइप बातें, बट बहुत से रिलेशनशिप्स में मैंने एक्चुअल नजरियाती और वैल्यू के डिफरेंसेस देखे हैं जो कि इजीली आप शादी से पहले डिसर्न कर सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो बिफोर वी एंड, I want yours to take on how important is it for the husband and wife to agree on their moral and ethical values? मेरे ख्याल से it is the most important thing. मैं तो शादी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं और आप प्लान करने लगते हैं कि आपको शादी करनी है, these are the things that जो आपको देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पता क्या होता है, people are there seeking passion, और people are saying things कि मोहब्बत काफ़ी होती है, और लड़कियों में मैंने बहुत कॉमन देखा है कि मैं इसको बदल दूंगी, या माँ बाप भी अपने बेटे की जब शादी कराना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि यार ये अभी आवारा है, ये लड़की आएगी तब ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो शादी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बारे में सोचें, आप ये अगले बंदे के बारे में सोचें ही ना। आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी को अगला बंदा कैसे बेहतर करेगा, या जैसा है उसको कंटिन्यू कैसे करेगा। सो मेरे ख्याल से तो एथिकल एंड मॉरल सेम आइडियल्स होना इज़ एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आपको एक लगता है कि देयर इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू,
और वो बंदा उससे एग्री नहीं करता है, तो इट्स अ वेरी गुड इनफ रीजन टू नॉट गेट इनटू दैट मैरिज. No, I totally agree कि they form the basis because initially if you, like Mayana said, you do plan कि ठीक है मैं compromise कर लेता हूँ. In the long run, if you're compromising on the basic morals, तो वो आपको चीज़ खटकती रहेगी. It will become built in you, and at the end of it वो आपके लिए resentful हो जाएगा relationship. और फिर जब आप जिंदगी के major फैसले करेंगे of how you want your children to be raised, उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी. So I think it's very important. Leila hinted to our next topic, which is compromise. हम ये बहुत सुनते हैं कि यार शादी में ना compromise करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ता है. Compromise के चक्कर में ना आप अपने आप को ज़बा कर लो. तो what do you guys think are the compromises that are worth it, and what are ones जिनमें आपको होना चाहिए कि यार नहीं ये मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं compromise कर सकती? अच्छा नहीं, देखो कॉम्प्रोमाइज जब होता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि कुर्सी थोड़ी सी राइट मुड़ी हुई हो, और नहीं दूसरा मियाँ कह रहा है कि नहीं कुर्सी थोड़ी सी लेफ्ट मुड़ी हुई हो. कॉम्प्रोमाइज से मतलब ये कि आज हम नीली बेडशीट बिछाएं, आज हम सफ़ेद बेडशीट बिछाएं, ठीक है. बट मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं जी, तुम्हारी सास कह रही है तुम नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओगी, या तुम बच्चे पैदा नहीं करनी चाहती और तुम 7 बच्चे पैदा करोगी, या तुम अपनी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती और यू विल बी फोर्सफुली आस्क्ड, और इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ मॉनेटरी contribution in the house and you are asked to make that monetary contribution कि नहीं अपनी पे का तुम 70% घर में खर्च करोगी. So I think these are the big compromises. और कोई ऐसी बात जिसके लिए some values that you firmly believe in, उसके ऊपर आपको करना पड़ता है, या अपनी नंद को अपना कमरा देना पड़ता है. These are the compromises जिन पे आप नहीं करेंगे. So I think compromise की जब हम कहते हैं शादी चलाने के लिए compromise करना है, तो हम उसको define ही नहीं कर पा रहे. हम sacrifice को compromise कह रहे हैं. Compromises आर कि छोटी मोटी आपने बात कर दी कि जी नहीं पर्दा यूं नहीं होगा, यूं होगा, या सुबह अगर जाना है काम पे तो कौन आज बच्चे को नाश्ता कराएगा, या चलो चाय मियाँ बना रहे बीवी बना रहे. बट हैविंग सेड दैट कि औरत घर का काम भी करेगी, औरत बाहर दफ्तर का काम भी करेगी, घर का झाड़ू पोछा भी करेगी, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत भी करेगी, बहन भाइयों का ख्याल भी रखेगी, और एंड में कहा जाए कि ये कॉम्प्रोमाइज है. तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ वेरी बिग कॉम्प्रोमाइज टू आस्क. इट इज अ सैक्रिफाइस. हाँ, नो आई एक्चुअली आई थिंक दुरुस्तमीन उस दिन ये कही थी कि हमारे यहाँ पे सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज को बड़ा इंटरचेंज किया जाता है. पहले तो मुझे लगता है कि लैला इज एग्जैक्टली राइट कि मतलब मेरे लिए मेरे ख्याल से मैंने अपनी शादी में सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज ये किया है दैट माय हस्बैंड स्नोर्स. तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है. लेकिन उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे देखती हूँ जहाँ पे लड़कियों की एक मुझे आई रिमेंबर समवन सेइंग दैट ओ माय गॉड ही सो नाइस टू मी, वो मेरे से इतना प्यार करता है, सब कुछ करता है, बस एक चीज़ कहता है कि नौकरी छोड़ दो. तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती. ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है. आप यू आर लेटिंग गो ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड योर आइडेंटिटी. कल को कोई पता नहीं वही बंदा आपको चपेड़े करने लग जाए, कोई पता नहीं वो बंदा मर जाए, आप क्या करेंगे? आप ना शक्ल देखते रह जाएंगे. आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और लेटिंग गो ऑफ दैट इज अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज, एंड आई डोंट थिंक सो मैरिज इज वर्थ इट. अगर एक बंदा आपसे ये चीज कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो दैट मैन इज वर्थ इट. सो आई डोंट थिंक सो. मैं उस दिन मैं किसी को देख रही थी कि उन्होंने कहा था कि किसी ने पूछा कि यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन शादी. कोई बंदा बल्कि पॉडकास्ट में कह रहा था, एंड समवन सेड दैट compromise is the most important thing. I don't think so. Shadi is not synonym to compromise. It is valuing each other. I feel it is. Value in each other आप कर सकते हैं. आप compromise आप छोटी छोटी setting, कोई सोफे का रंग पीला नीला हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन you shouldn't let go of your identity. मुझे नहीं लगता कि that's worth any man in the world. And if there is a man who's asking you to let go of that, that man is definitely not worth it. Also recently this thing happened. हमने एक एडवाइसेस पे एपिसोड की थी और उस पे एक लड़की की एडवाइस आई थी, और ये मैंने बहुत ज़्यादा अपने लोगों से, आई थिंक दिस इज समथिंग आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज वेल, कि वी सॉ सच बैड एग्जाम्पल्स ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी जहाँ पे एक बंदा जो है वो कॉम्प्रोमाइज किए जा रहा है, या अगर दोनों कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा. वी सॉ सच बैड मैरिजेस कि शादी से कहीं ना कहीं भरोसा हट गया. एंड आई फील ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली शादी है उसने एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट की हुई है फॉर यंगर जनरेशन. एंड आई नो सो मेनी वुमेन हु जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे जस्ट गिव अप. वो उनको लगता है कि जिंदगी अकेली शायद ऐसी शादी से ज्यादा बेहतर है. एंड टू ऑल दोज पीपल आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर, and it's a beautiful relationship. It's a beautiful relationship if you find the right partner, and if you do not sacrifice,
then it's a beautiful relationship. What do you say about that? Yeah, what I feel is that shadi in a modern society is a beautiful relationship, and boys are changing, girls are changing a lot. Girls know what they want from life. They know how they want to achieve that. A lot of, not all. Boys are changing a lot as well. They are learning from the marriages of their parents and their grandparents. They are more acceptable of the surroundings. They're more supportive, not all but a lot of them, thanks to social media. और जो टीवी ड्रामा में कुछ में जो अच्छी बात बताई जा रही है, बहुत हद तक मॉरल्स लोगों के सही होते जा रहे हैं. तो if वो like Mariana said कि दोनों एक ही पेज पे हैं, it is a beautiful relationship, it is a beautiful companionship. जो पुराने हमारे हुआ होता था, मैंने बहुत मोस्टली नहीं देखा. जिस तरह हमारे वालिदैन और उनकी जनरेशन में एक हाउस होल्ड होता था, दावत है तो क्या है आपका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या है कि मर्द हजरात बीवियों पे जोक्स क्रैक करते थे. अब वो रिलेटिवली, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन और पॉइंट ऑफ जोक क्या था मैरिज के, वो जी मतलब लड़कों के, वो भी चेंज हो रहा है. सो उससे the progress is happening, but I think we need to discuss that more and more. We need to discuss how modern marriage works in the society for it to progress for people, because a bad marriage is not just unhealthy for a woman, it's equally unhealthy for the man, and it is equally unhealthy for the entire family structure. तो वो जो हम कह रहे हैं कि वो हम westernized हो रहे हैं क्योंकि हमारा marriage system change हो रहा है, it is not, we're not westernizing. It's just that people are getting to know their boundaries, and it is better that they get to know their boundaries and not stay in toxic relationships than being in resentful or unhappy marriages. अच्छा, ये एक चीज मैंने रिसेंटली मैंने रियलाइज की है कि पुराने जमाने में ना, सिर्फ बिकॉज वी विमेन हम लोग सिंपैथाइज औरतों से ज्यादा कर सकते थे, हमारी माओ इर्द गिर्द जो भी हमारे सारे कुछ है. बट अभी रिसेंटली जब मैं नोटिस करती हूँ ना कि जब एक औरत कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस किए जा रही है, जाहिर सी बात है यू विल बिकम बिटर. एंड देन एक पुराने जमाने की औरतों में बहुत ज्यादा आदत होती थी, ये हर वक्त मियाँ को ताने मारती रहती थी. तो मैं यही कहती हूँ कि वो ऐसे नहीं होता कि वो कोई उनको शौक है ताने मारने का, वो इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने जिंदगी में इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए होते हैं, एंड देन दे डोंट लेट पीपल नो अबाउट इट कि भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है. और शायद अगर वो उनको बता दे कि भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तो अगला पर्दा कहेगा भी नहीं कि शायद तो इसकी जरूरत भी नहीं थी. शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कह के भेजा कि अगर तुम ये सेक्रीफाइस करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलेगी, बट आप सिर्फ बिटर हो रहे हो और आप अपनी मियाँ को ताने मारे जा रहे हो. और नहीं, वो पहले शादी होती ये थी ना कि पहले औरत मियाँ को ताने मारती थी और मियाँ महफिलों में औरत पे जोक्स क्रैक करता था, और फिर उसमें वो एक छोटी पुटी खिटपिट होगी जो घर जाके एक बहुत बड़ा it's a long fight. So men are changing, women are changing, but there needs to be a lot more work that's required for both of them to be on same page, that for a healthy society they need to work together to make it a happy and a healthy society. So it is a contribution of both. So on that note, I think you've summed it up very beautifully and explained what marriage is, and I especially like you guys mentioned how beautiful of a relationship it can be. हमें क्या पता, वो जिनकी होती है उन्हें पता होगा. But I don't mean it in a very romantic way. I said because you romance. Romance कौन करता है? No, I don't say it in a romantic way. I'm just saying it कि मुझे लगता है कि your relationship with your spouse is the most important relationship in your life. हालांकि आप कहते हैं कि बच्चों से बहुत प्यार है, माँ बाप से बहुत प्यार है, बट मुझे लगता है कि शायद आपकी जिंदगी में एक पॉइंट पे मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपका मियाँ आपके माँ बाप और बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम सेइंग दैट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो है ना, आपका कैसा रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज मुझे लगता है कि कल को शायद आप डेथ बेड पे हो गए, आपकी बीमारी का वक्त चल रहा होगा, योर चिल्ड्रन माइट बी बिजी विद देयर ओन लाइव्स, योर पेरेंट्स माइट नॉट बी देयर, योर स्पाउस विल बी देयर फॉर यू. एंड आई हैव सीन दिस दैट जिनकी जिंदगियों में उनके अच्छे रिलेशनशिप विद देयर स्पाउसेस हैं, दे हैव हैड गुड लाइव्स. उनकी जिंदगी में उनके फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं, कोई और मसले चल रहे हैं, लेकिन अगर उनका एक अच्छा रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस है, आई हैव सीन उनकी जिंदगी में खुशहाली है. और जहां मैंने देखा है कि चाहे आपका अच्छा करियर है, चाहे आपकी जिंदगी में अच्छा पैसा है, अच्छी दोस्ती है, लेकिन जहां आपका स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, मैंने देखा उनकी जिंदगियां एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट हैप्पी लाइव्स. सो मुझे ये चीज बहुत हैरानी देती है कि लोग ये डिसीजन लेते हुए कि उन्होंने कैसा स्पाउस चाहिए, इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ही देते थे, बिकॉज दिस इज लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ कि आपने कैसा एक पार्टनर अपनी जिंदगी में चुनना है. सो गाइस, प्लीज डू नॉट टेक दैट लाइटली. Yes, it's the most important decision of your life. I have said this before in a video as well कि
guys and girls, choose your partner very very wisely. Parents understand this, that वो ज़माने गए कि जब आपकी लड़के ख़ास तौर पे प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, वो ज़माने गए when where you have no idea कि मेरा स्पाउस कैसा होगा. मेरी अम्मी जाएंगी किसी के घर, रंग, बालों की लेंथ, कद की लेंथ, उनकी अमारत की बिना पर एक लड़की चूज़ करेंगी, या मॉरल वैल्यूज़ या दीनी सेक्ट की बेसिस पे. यू नीड टू बी ऑन सेम ग्राउंड. सो डिसाइड who you want to get married, how you want your life to be run, and do not, tell your parents the kind of spouse you want, because वो ज़माने गए कि आपकी mothers, आपकी बहनें, आपके वालिदैन गए, they choose a partner for you, और वो लड़की आई, उसने compromise किया, a beautiful relationship will work out of it. I really wish it does work out of it, but times are changing, expectations are changing, so उस चीज़ को सीरियसली लें कि आप किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि मेरी सारी जिंदगी कैसे रन हो रही है. Yeah. I think that's a very good note to end this conversation. A very long conversation, I think. Because it's also a very important conversation, which I'm glad that you guys could give such good input on. And I think it's very valuable input that a lot of people can use in their lives and they resonate with. And I'm sure बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि हमने नहीं की. So do let us know your thoughts about the things we talked about, or anything else that you want us to talk about in the future. Let us know in the comments. For now, this is goodbye, and inshallah we'll see you guys soon.